block elements. So which elements are called as s block? The elements in which the last electron enters into the s orbital. Okay, so elements in which the last electron enters into an s orbital, they are called as s block elements. अब s block के अंदर देखो हमारे पास दो केसेस आते हैं. One is two groups are there under the s block. One is alkali metals, that is group number 1, and the other is group 2, alkaline earth metals. Group 1 जो alkali metals है, why it is called as alkali? Alkali metals को alkali क्यों बोलते हैं? Because most of the oxides and hydroxides of this particular group are strongly alkaline in nature. ठीक है, strong alkaline nature of the oxides and hydroxides. So they are strongly basic in nature बोल सकते हैं, या फिर strongly alkaline. What are alkalis? Water soluble bases. ऐसे bases जो water में soluble है, they are called as alkalis. So because these metals, जो alkali metals है, इनके oxides and hydroxides are strongly alkaline in nature, that is why they are called as alkali metals. And group 2 alkaline के साथ earth metals भी है. So the metals of this particular group are also, their oxides and hydroxides are also alkaline. ठीक है, so oxides of this group are strongly alkaline, इसलिए उनका नाम alkaline पड़ा. और earth क्यों? Because they are found in the earth crust. Found in the earth crust. So they are not easily decomposed actually. Most of the compounds of group 2 elements, they are found in the earth crust. They are not easily decomposed. So that is why the term earth, as they are found in earth crust, and alkaline because their oxides are strongly alkaline in nature. Obviously less इससे लेस होता है, ग्रुप 2 से कम एल्कलाइन होता है, लेकिन जनरली अगर प्रोडक्ट टेबल पे देखें सो दे आर ऑल्सो स्ट्रांगली एल्कलाइन. ठीक है, तो दैट इज वाई द नेम एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. नाउ वी विल डिस्कस द एल्कली मेटल्स फर्स्ट. सो एल्कली मेटल्स कौन से हैं? अब हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में रखते हैं, है ना, लेकिन हाइड्रोजन इज स्टडीड सेपरेटली because its properties resemble alkali as well as halogens. So hydrogen metal is not hydrogen element is not studied with the alkali metals, although it is there in group 1. क्योंकि हाइड्रोजन की क्या properties? It's a non-metal and its properties resemble alkali as well as halogens. So alkali metals के अंदर हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ठीक है, आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स फ्रांसियम जो है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. सो इट इज स्टडीड सेपरेटली विद द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. सो सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. फर्स्ट पीरियड में क्या है? हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन इज स्टडीड सेपरेटली, राइट, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल बोथ एल्कली एंड हैलोजेंस. तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप. That is how you can remember the sequence of alkali metals. अगर हाइड्रोजन को भी लगा दें तो हेलेना बना सकते हैं, हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप, बट हाइड्रोजन को हम अलग से पढ़ेंगे. So Li stands for lithium, Na stands for sodium. सोडियम का जो सिंबल है that has been derived from the Latin name natrium. इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, तो वहां से इसका सिंबल डिराइव्ड है. Otherwise we call it as sodium. Then K, potassium. Potassium का जो symbol है that has also been derived from the Latin name. The Latin name is Kalium. तो वहां से symbol आ गया K. और वैसे क्या बोलते हैं इसको? Potassium. Rb stands for rubidium. Cs for cesium. Fr for francium. ठीक है,
इसमें से जो सोडियम एंड पोटेशियम है दे आर मोर अबंडेंट, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर लेस अबंडेंट. ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइक मोर अबंडेंट in nature. Sodium is the 6th most abundant element and by mass in the earth crust, and potassium is the 7th most abundant element by mass in the earth crust. ठीक है, so जो भी most of the sodium and potassium salts are found in sea water, like the fluorides, sodium chloride and potassium chloride is abundant in sea water, right? और बाकी सारे क्या है, ये कम abundant है. और फ्रांसियम जो है दैट इज रेडियोएक्टिव, है ना, और इसका जो लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप होता है उसका हाफ लाइफ इज ओनली 21 मिनट्स. सो फ्रांसियम 223 दैट इज द लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप. तो फ्रांसियम का जो आइसोटोप जिसकी सबसे ज्यादा लाइफ है दैट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स. दिस इज द लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप जिसकी सबसे ज्यादा लाइक जिसकी लाइफ है. ठीक है, जिसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स है. फ्रांसियम 223, दिस रिप्रेजेंट्स द मास नंबर. सो देयर आर मेनी सॉल्ट्स लाइक सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, है ना. तो देयर आर वेरियस सॉल्ट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, this one borax. So there are many salts of sodium. Likewise, there are many salts of potassium chloride. Then there is carnallite, double salt of potassium and magnesium. तो बहुत सारे salts में ये exist करते हैं. Okay, now let's see the physical properties. और physical properties में क्या है? One is your regular trend that you have to remember as you've done in periodic table. ठीक है, उसके अलावा जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो अच्छे से मार्क कर लेनी है और याद भी रखनी है. फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक और द आयनिक रेडियाई. सो वी हैव टू कंपेयर इट along the period down the group. ठीक है, so lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. We'll be talking about only these elements. अब लिथियम का जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देयर आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन इज NS1. ठीक है, लिथियम बिलोंग्स टू सेकेंड शेल, तो इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1. और इनके अंदर जो इनसे पहले जो एलिमेंट होता है दैट इज अ नोबल गैस. ठीक है, सो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, हीलियम पहले आएगा, फिर 2s1, सोडियम के साथ नियॉन 10 3s1, इसी तरह से आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन. ठीक है, सीजियम इज एटॉमिक नंबर. क्या होता है सीजियम का एटॉमिक नंबर? 55, right? Xenon is 54 and 155. Similarly, अगर फ्रांसियम ले तो xenon के बाद रेडॉन है, रेडॉन इज 86, 7s1, 86 plus 1 87. तो जो भी नोबल गैसेस है इनके इमीडिएटली नेक्स्ट एलिमेंट इज द एल्कली मेटल. सो वी कैन you remember the atomic numbers of the noble gases. उसका इमीडिएटली नेक्स्ट एलिमेंट आपका एल्कली मेटल है. जैसे हीलियम इज एटॉमिक नंबर 2, सो लिथियम इज 3, neon is 10, sodium is 11, argon 18, potassium is 19, krypton is 36, rubidium 37, xenon is 54, so cesium will be 55, radon is 86, so plus 1 electron, francium is 87. So we can easily guess the atomic numbers on the basis of noble gas, है ना. तो nearest noble gas याद रखना है, उसका immediately next element होता है आपका alkali metal. अब क्या हो रहा है? We can see 2 से 3, 4, तो शेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप. सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एंड व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स. शेल्स ऐड होती जाएंगी तो उसकी वजह से साइज इंक्रीज करता जाएगा. सो ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स
there is increase in the atomic radii. Now let's talk about ionic radii. As we can see, they have one electron in the outermost shell, and after losing one electron they acquire the noble gas configuration. ठीक है, so एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या एक्वायर कर रही है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. इसलिए जनरली दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस. किस तरह के आयंस बनते हैं? यूनिपॉजिटिव. दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. So like lithium 1 positive, sodium, potassium, rubidium, cesium. तो ये सब के सब क्या बनाएंगे? 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ठीक है, सो दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस ड्यू टू, रीजन क्या रहेगा? दे अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. They attain noble gas configuration after loss of one electron. They attain noble gas configuration after losing one electron. ठीक है, अब फर्दर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि अब अगर हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कहाँ से निकालना है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से. सो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इसीलिए वो फेवरेबल नहीं है. सो जनरली दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस. नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेडियाई? लिथियम 1 पॉजिटिव, हीलियम कॉन्फिगरेशन, नियॉन. अब हीलियम की कॉन्फिगरेशन होती है 1s2, नियॉन इज 2s2 2p6. सो अगेन देयर इज अ शेल डिफरेंस. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक शेल का फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो आयंस है उनमें भी डिफरेंस है शेल का. सो द ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज द सेम एज एटॉमिक रेडियाई. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई? सीजियम विल बी बिगर इन साइज, देन रुबिडियम, पोटेशियम, देन लिथियम. ठीक है, सो जो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है, द सेम ऑर्डर इज फॉर द आयोनिक रेडियाई. आयंस का रेडियाई भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा. Okay, now let's talk about the physical state. So what is the physical state? All the alkali metals are silvery white solids. If we talk about the physical state, so all of them are silvery white metals. तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? उस तरह के ये होते हैं. ठीक है, दे आर सॉफ्ट इनफ, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद अ नाइफ. मतलब इतना सॉफ्ट रहता है कि, और ये जो सॉफ्टनेस है दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. विल जस्ट टॉक व्हाई द सॉफ्टनेस इज देयर. और क्योंकि ये मेटल्स है तो इनमें क्या होता है? लस्ट्रस अपीयरेंस होती है. ठीक है, so they have lustrous appearance, shiny appearance. तो मेटल्स की जो शाइनी अपीयरेंस होती है उसका रीजन क्या होता है? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इनके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड रिफ्लेक्ट इट. सो ड्यू टू दैट दे शो लस्ट्रस अपीयरेंस. सो द लस्ट्रस अपीयरेंस इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दे कीप ऑसिलेटिंग, और उनकी वजह से, ठीक है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं और उसकी वजह से शाइनी अपीयरेंस होती है जनरली मेटल्स की. सो दे आर सिल्वरी वाइट सॉलिड्स. दैट इज द फिजिकल स्टेट, है ना. दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट बट दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. दे हैव लस्ट्रस अपीयरेंस, और ये जो लस्ट्रस अपीयरेंस है ये थोड़े टाइम में क्या हो जाती है? डल हो जाती है. व्हेन दे गेट टार्निश्ड इन एयर. Okay, so alkali metals they become dull on oxidation because they convert into oxides. तो जब
एयर के कांटेक्ट में आएंगे तब वो डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए। सो नॉर्मली दे हैव लस्ट्रस अपीयरेंस बट दे बिकम डल ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स। Now what is the reason for the softness? See, the softness is due to the metallic bonds. अब यहाँ पर जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द मेटल एटम्स उनको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड्स। और जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? मेटालिक बॉन्ड्स का जो स्ट्रेंथ होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इन अ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, जितना लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, उतना ही सोडियम, पोटेशियम। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम है बट साइज ऑफ एटम्स का भी फर्क होता है। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज करेगा तो मेटालिक बॉन्ड्स, बिकॉज मेटालिक बॉन्ड्स क्या है, देखो ये आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन है एंड दीज आर द मेटल आयंस। सो मेटालिक बॉन्ड्स को हम कैसे लेते हैं? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है कि जो वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मोबाइल और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आसपास के जो भी न्यूक्लियाई है उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड एडजेसेंट एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, राइट। सो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मोबाइल, सो दे आर काइंड ऑफ शेयर्ड बाय ऑल दी आयंस, प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम एडजेसेंट केटायंस, राइट। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, मेटालिक बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट में शेयरिंग होता है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दीज आर काइंड ऑफ शेयर्ड बिटवीन ऑल दी आयंस बिकॉज दे आर मोबाइल, दे आर मूविंग हियर एंड देयर। ठीक है, तो वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, सो दे आर बीइंग शेयर्ड आल्सो एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम एडजेसेंट न्यूक्लियाई। सो ये एक तरह का आयनिक इंटरेक्शन भी हो गया। अब मेनली इसको आपने आयनिक इंटरेक्शन की टर्म्स में देखना है। अब आयनिक इंटरेक्शन कब स्ट्रांग होगा? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जब डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होगा so this ionic interaction will be stronger. So when the size of atoms is small तो ionic interaction stronger होगा तो strong metallic bonds बनेंगे। So metallic bond strength is directly proportional to size of atoms, ठीक है, and number of valence electrons. अगर size of atom inversely proportional है ना, not directly but inversely proportional. So just like your ionic interaction force of, जैसे हमने ionic force पढ़ा है, ionic force is inversely proportional to size, same way यहाँ भी ionic interaction है। So metallic bond strength increase करेगा अगर size of ions decrease कर रहा है, ठीक है, so it is inversely proportional. अगर size छोटा है तो ionic interaction will be stronger and if ionic interaction is stronger, more stronger metallic bonds will be formed. एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ज्यादा आयनिक इंटरेक्शंस होंगी, ज्यादा आयनिक इंटरेक्शंस होंगी तो अगेन द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, बट इन दिस केस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, सो वी विल ओनली फोकस ऑन द साइज फैक्टर। तो जैसे साइज आयंस का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, आयनिक इंटरेक्शन बढ़ रहा है, मेटालिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं एल्कली मेटल्स में। डाउन द ग्रुप सी द एल्कली मेटल्स आर वेरी बिग इन साइज, इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स दे हैव द लार्जेस्ट साइजेस बिकॉज व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस, ठीक है। सो एल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। नाउ बिकॉज दे हैव लार्ज साइज तो उनके मेटालिक बॉन्ड्स कैसे होंगे, वीक होंगे, राइट। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप तो साइज और बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा अगेन द मेटालिक बॉन्ड्स विल बिकम वीकर एंड वीकर, द आयनिक इंटरेक्शन विल बिकम वीकर एंड वीकर, ठीक है। सो आयनिक इंटरेक्शंस वीकर होती जाएंगी, सो वी विल से डाउन द ग्रुप metallic bond strength decreases
down the group metallic bond strength decreases. Why? Because the size of metal ions, size of metal atoms increase. तो जैसे से साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीज करेगा, आयनिक इंट्रैक्शंस वीकन होती जाएंगी. ठीक है, वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे. वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, द सॉलिड विल बी सॉफ्ट, आसानी से टूट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टीज की पढ़ रहे हैं कि दे आर सिल्वरी वाइट सॉलिड्स, मेटालिक लस्ट्रस अपीयरेंस होता है लेकिन सॉफ्ट होते हैं, और ये सॉफ्टनेस इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. ठीक है, सो लिथियम एट द टॉप विल बी लाइक द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स, क्योंकि टॉप में है, छोटा साइज है, उसके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे. सो लिथियम विल बी हार्डेस्ट ऑफ ऑल. डाउन द ग्रुप एज द साइज इंक्रीजेस, मेटालिक बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, और वीक मेटालिक बॉन्ड्स होंगे तो द सॉलिड विल ब्रेक इजीली. ठीक है, सो सॉफ्टनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. समझ आ रहा है ये, है ना. तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा. अब इसी मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है मेल्टिंग पॉइंट. अब जिस सॉलिड में वीक मेटालिक बॉन्ड्स है, ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब वीकर मेटालिक बॉन्ड्स है. तो अगर वीकर मेटालिक बॉन्ड्स है तो उनको ब्रेक करना आसान है. तो अगर हमने सॉलिड को मेल्ट करना है लिक्विड में, if you want to melt the solid into liquid, so because of weak metallic bonds it will be easier to melt cesium. ठीक है, so the one which has a lower melting weak bond that will melt easily. जिसमें weak bonds है उसको ब्रेक करना आसान है, तो बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत नहीं है. ठीक है, so melting points क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप, बिकॉज यहाँ पर सीजियम के केस में, इस तरह से आप याद रखो, सीजियम के केस में वीक इंटरमेटालिक बॉन्ड्स हैं. ठीक है, वीक इंटरमेटालिक बॉन्ड्स या मेटालिक बॉन्ड्स बोल सकते हैं. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम विल बी लो, सो देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप. सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ वीक होता जा रहा है. जिससे से साइज बढ़ेगा, वीकर मेटालिक बॉन्ड्स विल बी देयर एंड दे विल ब्रेक इजीली. सो it will be easier to break the solid into liquid. क्योंकि solid को liquid में convert करने का मतलब है हम उसके forces को थोड़ा सा break कर रहे हैं. ठीक है, separate कर रहे हैं atoms को. So down the group melting points decrease. Okay, melting points decrease down the group. और reason क्या रहेगा, due to decrease in intermetallic bond strength, due to decrease in metallic bond strength. So ये जो softness, hardness या melting point है, ये सारा metallic bond से related है. So we talked about atomic and ionic radii, physical state. Now let's see the next property, that is density. ठीक है, अच्छा, melting point and boiling point will have the same trend. अगर आपको boiling point पूछा है तो भी हम same concept लेंगे. ठीक है, even in the liquid state we again take the ionic interactions only. So generally melting point पूछते हैं because these are solids, but अगर आपको boiling point भी पूछा है तो again we have to take the same trend. तो boiling point में भी हम ionic interactions देखते हैं and that decreases down the group. So melting point and boiling points have the same trend. Okay. Now next is density. Generally density का order क्या होता है down the group? Density depend करता है mass per unit volume पर. ठीक है, volume is related with the radii. अगर down the group radii increase हो रहा है, because atoms are assumed to be spheres, if the radii increases then obviously the atomic volume also increases.
ठीक है। सो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सब आपस में रिलेटेड ही है। अगर रेडियाई ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, और मास ऑफ एटम्स भी इंक्रीज हो रहा है। सपोज इफ आई कंपेयर लिथियम एंड सोडियम और पोटेशियम, so mass is increasing as the atomic number increases, number of protons increase, so mass भी increase हो रहा है, volume भी। तो generally for most of the cases down the group mass increases more than the volume increase, ये factor ज्यादा dominating होता है इससे। अब mass increase ज्यादा है तो इसलिए density क्या होता है, directly proportional to mass, so density increases down the group, ठीक है। so in for most of the cases density increases down the group, so density increases down the group, और reason क्या है, mass increase is more than the volume increase, but there is an exception, potassium is less dense than sodium। अब इसमें ये exception याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये ऑर्डर है तो हम इसको एक्सेप्शन लेकर चल रहे हैं। पोटेशियम हैज लोअर डेंसिटी देन सोडियम, तो क्या रीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ये फैक्टर डोमिनेटिंग है, ठीक है। सो फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम मास इंक्रीज से ज्यादा क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा डोमिनेटिंग है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द लूज पैकिंग, सॉलिड स्टेट में लूज पैकिंग अरेंजमेंट होता है तो उसकी वजह से टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, लूज पैकिंग of atoms in the solid state leading to high atomic volume, atomic volume बढ़ेगा तो density क्या हो जाएगा, कम। So there is loose packing of atoms in the solid state, due to that the atomic volume increases, ठीक है, या लेस क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं, या लूज पैकिंग ऑफ एटम्स। सो एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंड देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे कम नहीं है, सिर्फ अगर हम ऑर्डर लिखें तो लिथियम का सबसे कम है, फिर पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, सिर्फ इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। रेस्ट दे आर ऑल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो जस्ट पोटेशियम एंड सोडियम का पोजीशन एक्सचेंज हुआ है, बाकी डाउन द ग्रुप जनरली द डेंसिटी इंक्रीजेस। Okay, now let's see the ionization energy trend. Now what is the order of ionization energy? So as the size increases down the group, ionization energy क्या होता है, depends upon size. So the minimum energy required to remove the outermost shell electron, that is your ionization energy. Basically जो आयन में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो लिथियम आयन में कन्वर्ट होगा विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नेचुरली जब साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, एज द एटॉमिक साइज और रेडियाई इंक्रीजेस, what will happen, the force of attraction between the outermost shell electron and nucleus decrease हो जाएगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, साइज ज्यादा बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली, मतलब हमें उसे कम एनर्जी देना पड़ेगा। सो डाउन द ग्रुप एज द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and outermost shell electron decreases, therefore ionization energy also
decreases down the group. ठीक है, so IE decreases down the group. तो ज्यादा इजीली पॉजिटिव आयन में कौन कन्वर्ट होगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है. ठीक है, सो दैट मीन्स सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट है, so it can easily convert into a positive ion, right? It can easily lose electron. Metals का जो property होता है, the main property of metals is to lose electron. So the metal which easily loses electron, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, उसको हम बोलते हैं ज्यादा metallic. So if they ask you which is more metallic out of all these metals, the one which loses electrons easily, या फिर more electropositive पूछ सकते हैं. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी वही है जो आसानी से पॉजिटिव आयन बनाए. ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे. सो जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, और मेटालिक कैरेक्टर की जगह हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज मेटल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल्स क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस. सो जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना रेडिली वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे. सो मेटालिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स द सेम. सो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सो विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इस पे क्वेश्चन ये आता है. जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, वैसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? ऑल्दो सीजियम के नीचे फ्रांसियम है. इफ फ्रांसियम इज गिवन इन द ऑप्शन देन वी विल टेक फ्रांसियम. ठीक है, पर अगर फ्रांसियम नहीं दिया है तो जनरली सीजियम इज गिवन. सो अमंग्स द नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, इसका साइज सबसे बड़ा है और इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, तो इजीली पॉजिटिव आयन बनाएगा. अलॉन्ग अ पीरियड जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है. ठीक है, सो दिस इज लाइक द बिगेस्ट इन साइज अमंग्स द नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. सो सीजियम विल बी लाइक द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, अब अगर पूछे आपको कि अभी हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात की, इसी का उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इफ आई आस्क यू विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ दीज, जनरली विद मेटल्स वी यूज द टर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट इफ आई आस्क यू द अदर वे अराउंड विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो लिथियम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ड्यू टू स्मॉल साइज. ठीक है, सो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की. तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो उसकी टेंडेंसी लूज करने की कम होगी, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा? हाई. बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इट हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, और बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इट विल हैव टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम होगा, और वी कैन से लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज लिथियम ड्यू टू इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सो जनरली हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, बट अगर कहीं पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लिथियम की ज्यादा होगी. देन कंडक्टिविटी. सो दे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कंडक्टिंग होते हैं. क्यों होते हैं कंडक्टिंग? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. The valence shell has free electrons, so because of that they are also conducting. Okay, now the next property is hydration enthalpy. So what is hydration enthalpy? The energy released when the ion is hydrated.
जनरली जब हम एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं तो हम 1 मोल ऑफ द स्पीशीज लेते हैं, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज टेकन, ठीक है। जो भी हाइड्रेशन एंथैल्पीज होती हैं दे आर डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, बिकॉज एंथैल्पीज आर extensive properties, they depend upon the amount. So hydration enthalpy, the enthalpy change when 1 mole of an ion, 1 mole of a substance or ion, इस केस में हम ion की बात करें, so I'm writing ion, 1 mole of an ion is hydrated. See, this is your lithium ion, ठीक है, just comparing 2 ions, lithium and sodium. So lithium positive है, ठीक है, और water क्या होता है, water is a polar solvent. तो positive part जो lithium का है that will interact with the negative part of the dipole. Water is a polar solvent, इसमें positive and negative pole दोनों हैं. तो जो negative part of dipole है that is oxygen, ये interact करेगा positive lithium के साथ. So यहाँ पर ये जो इंट्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ आयनिक इंट्रैक्शन. पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ आयनिक इंट्रैक्शन. तो जहां पर भी आयनिक इंट्रैक्शन होता है वहां पर साइज फैक्टर याद रखना है. जितना साइज छोटा होगा उतना ये आयनिक इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, एंड ड्यू टू दिस आयनिक इंट्रैक्शन सम एनर्जी इज रिलीज्ड. This energy released is called as hydration energy, because hydra stands for water and water molecules are surrounding the ion. So ion hydrate हो रहा है, और इस हाइड्रेशन में जो इंट्रैक्शन हो रही है उससे एनर्जी रिलीज होगी. सो एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी. अब ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे लिथियम को, ठीक है. सो देयर इज एन एनवेलप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो इंट्रैक्शन होगा और 1 मोल ऑफ आयन जब हाइड्रेट हो रहा है, जो भी एनर्जी रिलीज पर मोल होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट. एंड एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस आयनिक इंट्रैक्शन विल बिकम वीकर एंड वीकर, ठीक है. डिस्टेंस न्यूक्लियस और ये जो नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ डाइपोल है, इनका इंट्रैक्शन वीक होता जाएगा. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस और ऑक्सीजन के बीच में, तो इंट्रैक्शन वीक होता जाएगा. सो एनर्जी रिलीज्ड विल बी लेस. सो डाउन द ग्रुप, as the size of ion increases, hydration enthalpy decreases, right. तो इसको किससे रिलेट करना है, आयनिक इंट्रैक्शन से. तो जितना साइज छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा. As the size of the cation increases, the ionic interaction becomes weaker and less energy will be released. ठीक है. अब यहाँ पर ना नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना. जैसे सपोज इफ आई गिव यू कि लिथियम के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी, सपोज आई एम जस्ट अज्यूमिंग, सपोज फॉर लिथियम द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज -200. आई एम जस्ट अज्यूमिंग अ वैल्यू, ठीक है. और सोडियम के लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो है -100. तो नेगेटिव साइन को नहीं कंसिडर करना है. नेगेटिव ओनली मीन्स द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, ठीक है. नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स कि एनर्जी रिलीज हो रही है. हायर वैल्यू किसका है, इसका. सो लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है सोडियम से, ठीक है. क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं, पर इसको मैथ्स की तरह नहीं लेना है कि लेस नेगेटिव इज अ बिगर वैल्यू. नो, नेगेटिव ओनली इंडिकेट्स एनर्जी रिलीज्ड. So more energy is released in case of lithium because of its small size. अब जब लिथियम आयन हाइड्रेट होता है, ठीक है, तो एक वाटर का लेयर नहीं होता है. So many water molecules, you know, they form separate layers around the lithium ion. क्योंकि इसका जो फोर्स, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस की तरफ से, वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा इवन फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंसेस. तो लिथियम आयन के अराउंड जो लेयर्स बनती है वाटर मॉलिक्यूल की, वो बहुत सारी बन जाती हैं. उसकी वजह से जो उसका साइज होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन, निक रेडिया, ठीक है. एक होता है हाइड्रेटेड आयन और एक आपका सिंपल आयन है लिथियम आयन मॉल्टन स्टेट में, ठीक है. मॉल्टन स्टेट में देयर इज नो वाटर, सो ओनली लिथियम आयन इज प्रेजेंट.
Molten means the liquid state. So there are, now I'm talking about hydrated lithium ion. Hydrated ionic radii. ठीक है, एक नॉर्मल रेडियाई था, अभी हाइड्रेटेड होने के बाद, हाइड्रेटेड होने के बाद जो इफेक्टिव रेडियाई है हम उसकी बात कर रहे हैं. अब लिथियम के राउंड, क्योंकि देखो लिथियम का साइज तो छोटा था, लेकिन उसके राउंड इतनी सारी जो लेयर्स बन गई वाटर की, उसकी वजह से जो उसका इफेक्टिव साइज है, बिकॉज जब लिथियम घूम रहा है तो वो पूरी बंडल लेकर घूम रहा है, वाटर मॉलिक्यूल साथ में जा रहे हैं उसके, ठीक है, तो उसका जो इफेक्टिव साइज है वो बहुत बड़ा हो गया. इतना बड़ा कि जो सीजियम का साइज है, ऑल्दो सीजियम इज बिग इन साइज, बस उसका लेकिन उसका हाइड्रेशन कैसा है, पुअर है, तो उसके अराउंड बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं है, तो इफेक्टिव लिथियम का साइज सीजियम से भी बड़ा हो जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन इट इज आस्क्ड सिंपल आयनिक रेडियाई. जब आपको हाइड्रेटेड वर्ड नहीं दिया है तो आयनिक रेडियाई सबसे बड़ा सीजियम का ही होगा, लेकिन अगर मेंशन किया है हाइड्रेटेड, सो देन वी हैव टू कंसिडर दिस सॉल्वेंट लेयर. वाटर मॉलिक्यूल का जो लेयर होता है लिथियम के अराउंड, उसकी वजह से उसका इफेक्टिव साइज इंक्रीज कर जाता है. सो देन हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई ऑर्डर विल बी जस्ट दी ऑपोजिट. लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेट होता है तो उसकी वजह से उसका इफेक्टिव साइज इंक्रीज कर गया. सीजियम की हाइड्रेशन मिनिमम है, सो उसका इफेक्टिव साइज सबसे कम होता है. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज लिथियम के केस में हाइड्रेशन कैसा है, मैक्सिमम. नाउ विद दिस हाइड्रेटेड आयनिक का रेडियाई ज्यादा है सबसे, ठीक है, और इसी से रिलेटेड होती है कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी. सो आयनिक मोबिलिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन. आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है. मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस. अब कौन सा वाला देखो, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं तो किसका मूवमेंट फास्टर होता है? मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ आयन. नाउ विच आयन विल मूव फास्टर? नेचुरली जो ज्यादा बल्की नहीं है, कम बल्की है, जिसका इफेक्टिव साइज कम है, वो ज्यादा आसानी से मूव कर सकता है. जो बहुत बल्की होगा उसको मूव करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, मूवमेंट उसका स्लो होगा. तो जब हम सोल्यूशन में बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हमने कर दिया आयंस का, तब जो मोबिलिटी है, क्योंकि वाटर का एक लेयर है, ठीक है, aqueous solution में there is a layer of water molecule surrounding it, so then you have to consider the effective size. तो इफेक्टिव साइज जब हम कंसिडर करेंगे तो लिथियम का साइज बड़ा है तो उसका मूवमेंट स्लो होगा. सीजियम का इफेक्टिव साइज छोटा है तो उसका मूवमेंट थोड़ा फास्टर होगा, ठीक है. सो अदरवाइज तो लिथियम छोटा था, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आपने इफेक्टिव साइज के बेसिस पे एनालिसिस करना है. सो मोबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा? सीजियम का. एंड लीस्ट विल बी, ऑल्दो सीजियम इज बिग इन साइज, बट इसका इफेक्टिव साइज, हाइड्रेटेड आयन का साइज कम है लिथियम से, इसलिए सीजियम का मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, ठीक है. अब जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आयंस की मूवमेंट को कंडक्टेंस से रिलेट करता है, सो कंडक्टेंस उस आयन का ज्यादा होगा जो जल्दी मूव कर रहा है, ठीक है. दैट पर्टिकुलर आयन इज कंसिडर्ड टू बी मोर कंडक्टिंग, जिसका मोबिलिटी ज्यादा है. तो जो मोबिलिटी का ऑर्डर है, द सेम ऑर्डर इज फॉलोड फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है. बिकॉज ये जो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस के ऊपर. सो जो आयनिक कंडक्टेंस है, या इसको मोर प्रिसाइज यू कैन राइट इट एज कंडक्टेंस ऑफ आयंस, आयनिक कंडक्टेंस. तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या आयनिक कंडक्टेंस है, ये डिपेंड करता है आयंस के साइज के ऊपर, ठीक है. सो एज द सीजियम आयन इज लीस्ट हाइड्रेटेड, उसका मूवमेंट फास्टर है, सो इट विल बी मोर कंडक्टिंग इन एक्वस सॉल्यूशन.
Okay, I hope this is clear. Now let's see the next property. The next property is heats of atomization. Heats of atomization. जैसे enthalpy of hydration है, ionization enthalpy है. In the same way we have enthalpy of atomization. तो जैसे नाम से पता चल रहा है atomization means उसको atoms में convert करना है. कौन से atoms में? Generally the metals are in the solid state, so we will convert them into gaseous atoms. So enthalpy of atomization या फिर heats of atomization बोल सकते हैं. तो एटोमाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे अगर सोडियम सॉलिड स्टेट में है और उसको हमने ब्रेक करना है, सॉलिड में एटम्स आर क्लोज टुगेदर, एटम्स को दूर लेके जाना है गैसियस स्टेट में, तो जो भी एंथैल्पी चेंज पर मोल होता है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ठीक है. सो व्हाट इज एटोमाइजेशन? वी आर कन्वर्टिंग द सब्सटेंस जो कि सॉलिड स्टेट में है या जिस भी स्टेट में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, बेसिकली उसको एटॉमिक फॉर्म में ले जाना है. गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो ओरिजिनली किसी भी फॉर्म में हो सकता है. अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वहां से भी गैसियस एटम्स बना सकते हैं. अगर वो सॉलिड स्टेट में इस तरह से है तो वहां से भी गैसियस एटम्स में जो कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज एटोमाइजेशन. Now see, when we convert a solid into gas, it is also called as sublimation. So in this case, enthalpy of atomization will be same as enthalpy of sublimation. ठीक है. सब्लिमेशन में भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं. एटोमाइजेशन में स्टेट सॉलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है. सब्लिमेशन में क्या होता है? द स्टेट इज ऑलवेज फ्रॉम सॉलिड टू गैस. फॉर एटोमाइजेशन यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन उनको ब्रेक करना है इंडिविजुअल गैसियस एटम्स में. सपोज यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड से गैस, दैट इज ऑल्सो एटोमाइजेशन. अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, सपोज H2 का मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो वी आर ब्रेकिंग अप द मॉलिक्यूल इनटू एटम्स. सो दिस इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. सो एटोमाइजेशन में बेसिकली गैसियस एटम्स बनाना है. दिस साइड द स्टेट इज नॉट डिफाइंड. गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना है इन वॉट एवर फॉर्म द सब्सटेंसेस. और सब्लिमेशन में स्पेसिफिकली ये सॉलिड स्टेट में होता है ना. तो यहाँ पर आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हो या एटोमाइजेशन, बोथ आर करेक्ट. तो करना क्या है? जो सॉलिड स्टेट में एटम्स के बीच फोर्सेस है बेसिकली उनको ब्रेक करना है सो दैट द एटम्स सेपरेट ही करना है. गैस स्टेट में एटम्स को कन्वर्ट करना है मतलब दूर करना है. तो किस केस में किस पर्टिकुलर मेटल के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स? बताओ किसका होगा ज्यादा? किस केस में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? आउट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. लिथियम. ठीक है. रीजन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स. तो जब भी हम कुछ तोड़ रहे हैं ना तो फिर वो बॉन्डिंग देखना है. लिथियम में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स है तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाईएस्ट होगा. और जैसे जैसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स विल आल्सो डिक्रीज. सो डाउन द ग्रुप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिक्रीजेस. ठीक है. क्यों? रीजन क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ. As the metallic bond strength decreases down the group. Same reason. जो हमने melting point, boiling point के लिए देखा वही यहाँ पर एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन के लिए देखेंगे. Metallic bond strength decreases down the group. Okay, now the next property is flame coloration.
कलरेशन का क्या मतलब होता है? दे शो फ्लेम टेस्ट. जब ये एल्कली मेटल्स को जब हम हीट करते हैं ऑन अ बंसन फ्लेम, सो दे शो सर्टेन कलर्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज flame coloration. So when alkali metals or their halides, their salts are heated on a platinum wire. ठीक है, इस तरह से आपने एक platinum wire लिया, उसके ऊपर salt ले लिया, either the salt or the metal. So when you heat it, it shows flame coloration. तो flame test बोलते हैं इसको. आपने एक platinum wire के ऊपर salt लिया या फिर metal लिया और फिर बंसन फ्लेम के ऊपर उसको हीट किया. ठीक है, तो कुछ कलर्ड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं. सो दिस इज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट जस्ट टू आइडेंटिफाई द मेटल. इट्स अ काइंड ऑफ नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट बट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, है ना. सो हमारे पास क्या क्या मेटल्स हैं. अच्छा, रीजन क्या होता है फ्लेम कलरेशन का? जो इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जैसे 3s1 है वो एक्साइट हो जाते हैं. सो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ देयर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स these colored radiations are produced. ठीक है, so outer electrons क्या हो जाएंगे? They will absorb certain radiations, get excited, and when they de-excite, when they come back to the ground, when they come back to the previous state, so they emit radiations, right? जो भी उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है उसको emit करते हैं, और वो जो emit करते हैं radiations वो colored होती है. They lie in the visible range, so we can see specific colors, right? तो जैसे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 3s1 में है तो यहाँ से एक्साइट होकर 3p में चला गया. जब वो डी एक्साइट होगा तो एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस व्हिच लाई इन द विजिबल रेंज. So all the alkali metals show specific color. Lithium shows crimson red. Sodium yellow, potassium violet, rubidium red violet, cesium blue. So specific colored radiations are produced corresponding to specific wavelengths. ठीक है, so alkali metals can be detected by these flame test. और फिर फ्लेम फोटोमेट्री करके एक होता है, तो वहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट है. So you can remember the initials, है ना. So इसको आप कैसे याद रखते हो? CRY, cry, crying, violin, है ना. कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाकर इसको याद कर सकते हैं. CR स्टैंड्स फॉर क्राई कर सकते हो. CRY cry. So CRY cry, crying violin या villain कर सकते हो, crying villain, and RVB से किसी का नाम भी रख सकते हो. ठीक है, so you can make a sequence to learn it up. Crying villain, and RVB था जैसे red violin bursting, कुछ भी इस तरह का. Crying villain, red violin, crying villain, red violin, bursting. है ना, या ऐसे याद रख लो, क्राइंग विलन ने रेड वॉलिन को बर्स्ट किया या ब्लास्ट किया. सो यू कैन रिमेंबर द कलर्स. अच्छा, डायरेक्टली दे वोंट आस्क यू द कलर की कलर क्या है इसका, क्रिम्सन, लिथियम का, बट एज अ हिंट फॉर्म में ये दिया होता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर मेटल विच शोज मे बी क्रिम्सन रेड कलर ड्यूरिंग द फ्लेम टेस्ट. ठीक है, और वो ये पर्टिकुलर रिएक्शंस दे रहा है. सो समटाइम्स दीज कलर्स आर यूज्ड एज क्लू. हिंट फॉर्म में ये दिए होते हैं कि जैसे सपोज देयर इज अ मेटल विच गिव्स येलो रेडिएशंस ड्यूरिंग द फ्लेम टेस्ट. सो येलो जनरली सोडियम देता है. ठीक है, सो द स्पेसिफिक रेडिएशंस
जो है कलर्ड रेडिएशंस, वहाँ से स्पेसिफिक मेटल का हमें पता चलता है। तो एज अ हिंट फॉर्म ये यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक्स आपने याद रखना है कि क्या क्या कलर्स है, ठीक है। सो दीज वर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स।